إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت نعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين بينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات مثله كراء يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حمى الله في أرضه ومحاربه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله رواه البخاري. أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمہید، بڑھائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں، جس کے دست قدرت میں یہ ساری کائنات کا نظام ہے، جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے. اسی کے لیے ہر قسم کی عبادت زیب دیتی ہے، چاہے سجدہ ہو، نظر و نیاز ہو، دعا ہو یا کوئی بھی عبادت، وہ صرف اسی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے. وہ ذات ہے جو اس کائنات کا نظام چلاتی ہے، اور وہی ذات ہے جس نے ہمیں اپنی بے شبہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم لوگوں پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا لائیں. کس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم پر ہیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے. جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، اس سے بڑی عظمت تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا. ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ رب العالمین نے ایک طرف ہمیں صحت عطا کی، جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک طرف عقل سلیم عطا کیا، جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں چلنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، وہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی
नेमत भी अता की जिसका नाम दीन इस्लाम है। और इस दीन इस्लाम के अंदर जो आखिरुज़्ज़मान पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की तरफ मबूस किए गए, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का शर्फ अता किया, ये भी बड़ी नेमत है। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बड़ी अजीम किताब कुरान करीम से नवाजा था, जो हमारे हाथों में मौजूद है, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बड़ी नेमत है। गो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, तो हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई नेमतों का शुक्र बजा लाना चाहिए। इसके बाद दुरूद सलाम हो कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नई इंसानियत की तरफ और जिन्नात की तरफ आखिरी रसूल और नबी बनाकर मबूस फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी ही वो शरीयत, वो अमानत, वो दीन, वो मसाइल, वो अहकामात, तमाम चीज़ें उम्मत तक हरफ बहरफ बिअैनिही उसी तरह पहुँचा दी जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानत के तौर पर अता किया था। तो हमें दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजने के लिए मुकल्लफ ठहराया गया। हम पर लाजिम है कि हम हर हाल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस छोटी सी जमात की तरफ से, हमारी इस मजलिस की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर बेशुमार और बे इंतहा दुरूद सलाम की बारिश नाजिल फरमाए। बहरहाल आज मैं इस जुमा के मौके पे जिस मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो एक आम मौजू है। जैसे कि मैंने आपके सामने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी है और उसमें सीधे ही है पहले ही अल्फाज जो हदीस के हैं, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों हराम भी वाज़ेह है और हलाल भी वाज़ेह है, दोनों चीजें वाज़ेह है। तो अब हमें क्या करना है? तो आने वाले इस मुख्तसर से वक्त के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इस हदीस की वजाहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में करूं। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप लोग जो बातें मैं आपके सामने कुरान और सुन्नत के मुताबिक बयान करूं उनको अच्छे अंदाज में सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और फिर अमलाने की भी कोशिश करेंगे। दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इंसान पैदा किया और इस इंसानों की बहुत सारी किस्में हैं। कोई मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम है, कोई ओहदे वाला है और कोई गरीब है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इस इंसानियत के लिए जितनी भी ये कायनात के अंदर इंसान पैदा किए गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ दिया कि आपको जहां मर्जी आए, जो खाए, जो पिए, जो करे, नहीं, बल्कि इसके लिए हुदूद बनाए गए हैं, इसके लिए कायदे कवानीन बनाए गए हैं। कहां तक आपको जाना है, कहां पे रुक जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने का आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या न करने का आपको क्या फायदा मिलेगा, ये तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ये जो कुरान करीम आपके सामने है, 30 पारे हैं, ये 114 सूरतें हैं, इसके अंदर 6000 से ज्यादा आयत है। इसमें कुछ लिखा है और इसमें लिखा ये है कि आपका ये छोटा सा जिस्म है, ये 6 फीट का जिस्म जो 60 साल जिंदा रहेगा, 50 साल जिंदा रहेगा, 100 साल जिंदा रहेगा, आपके लिए एक कानून बना है, वो कुरान करीम है। न इसके बाहर जाना है, न इससे ज्यादती करनी है और न कमी करनी है। यह है इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद। आपको याद होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पहला इंसान इस दुनिया की तरफ लाया, उसका नाम था आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा कर रखा था। लेकिन फरिश्तों के अलावा एक और मखलूक
इस दुनिया के अंदर थी जिनको जिन्नात कहते हैं। और ये तीसरी मखलूक, बड़ी बड़ी मखलूकों में मैं कहता हूं, इसके अलावा लाखों किस्म की मखलूकात है। कोई कीड़ा है, कोई परिंदा है, कोई जानवर है, किसी को हम देख सकते हैं, किसी को नहीं देख सकते हैं। कोई पानी में रहता है, कोई हवा में रहता है, कोई दरख्तों पर रहता है, कोई कीड़े खाता है, कोई और चीजें खाता है। लेकिन इस मखलूक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वक्त इंसान को पैदा किया। पहला इंसान इस दुनिया की तरफ आया जिसका नाम आदम था अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पहला इंसान। और इस इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जोड़ा हजरत हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी पैदा किया, एक मर्द और एक औरत। इस सारी कायनात के अंदर इंसानों में एक मर्द था और एक औरत थी। मर्द का नाम था हजरत आदम और औरत का नाम था हवा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको पता क्या हुआ? एक अजीब वाकया हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को जन्नत में डाल दिया था। आप लोगों ने सुना है, बार बार सुनते हो। ये दोनों जन्नत में इनका घर था। ये जन्नत में ऐश और अयाशी के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को एक आजमाइश में डाला। आजमाइश क्या थी? आजमाइश ये थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों को फरमाया, ए आदम और ए हवा, ये फलानी दरख्त है, इसके करीब नहीं जाना है। ला तकरबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना। अगर तुम लोगों ने इस दरख्त के करीब जाने की गलती की तो तुम दोनों गुमराह हो जाओगे। और बदला पता क्या मिलेगा? बदला यह मिलेगा कि आपको जन्नत से निकाल दिया जाएगा। यह हुक्म हुआ किसको? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। यहां से पहले एक और हुक्म हुआ था। जो ही ये इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, जिन्नों में से एक बड़ा जिन था, वो बहुत इबादत गुजार था। वो जिन्नों में नंबर 1 मकाम रखता था इबादत के अंदर, जिसको आप शैतान कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस आदम को सजदा करो। यह नुक्ता आपको याद रखना है, आदम को सजदा करो। तो इसमें यहां पर हुक्म हुआ शैतान को सजदा करने का, और आदम को हुक्म हुआ दरख्त के करीब न जाने का। एक को करने का हुक्म है, दूसरे को न करने का हुक्म है। मैंने जो हदीस पढ़ी है, हदीस है अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, हराम भी वाज़िह है और हलाल भी वाज़िह है। आदम को हुक्म हुआ कि आप दरख्त के करीब मत जाना, इसने नाफरमानी कर दी, वो चला गया। शैतान को हुक्म हुआ आपको सजदा करना है, उसने नहीं किया, उसने भी नाफरमानी कर दी। जरा बैठ जाइए। उसको भी हुक्म हुआ कि आप सजदा मत कीजिए। इसको करना कैसे? यहां पर आपको इस चीज का ख्याल रखना है। नुक्ता है, शैतान को हुक्म हुआ करने का और आदम को हुक्म हुआ न करने का। आप लोगों को ये सोचना है ज्यादा सख्त हुक्म किसको मिला है। एक को करने का हुक्म है, एक को न करने का हुक्म है। इसकी मिसाल ऐसे है, मिसाल शराब के बारे में हुक्म है आपको नहीं पीनी है, लेकिन नमाज के बारे में है आपको पढ़नी है। एक मनफी है और एक मुस्बत है। वैसे ही मामला उनके साथ हुआ। सख्त हुक्म किसका है? न करने वाले का या करने वाले का? यह नुक्ता आपको याद रखना है। जैसा करने के लिए हुक्म की नाफरमानी कुफ्र है, वैसा ही है न करने की नाफरमानी करना भी कुफ्र है। शैतान को सजदा करना था, उसने नहीं किया, वो बड़ा मुजरिम ठहरा।
आदम को नहीं करना था, उसने किया, वो कम मुजरिम ठहरा। ये ऐसी ही मिसाल है। अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन। लोगों, हलाल भी वाजिया है और हराम भी वाजिया है, और कायनात के अंदर सबसे बड़ा किया जाने वाला हराम है शिर्क। शिर्क है अल्लाह के अलावा किसी को पूजा करना, किसी से मांगना, किसी से दुआ करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इन इंसानों को पैदा नहीं किया था, इससे 50,000 साल पहले, इससे 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों की रूह को पैदा किया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूह को पैदा करने के बाद इनसे एक इकरार लिया। इकरार क्या था? अलस्तु बिरब्बिकुम। तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफात। ये एक बड़ा मौजू है, लंबा मौजू है, मुझे एक चीज यहां पे टच करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे इंसानों को पैदा करके फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? जितने भी इंसान इस कायनात के अंदर आएंगे और आए हैं, इन सब ने, उसमें हम भी थे, हम सारे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे रूह से एक बात की, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, हम सब ने इकरार किया, हां तो हमारा रब है। यह है तौहीद रुबूबियत। तौहीद रुबूबियत का इकरार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आलम अरवाह में इंसानों को पैदा करने से पहले ही ले लिया है। इसीलिए आप जब गैर मुस्लिम से पूछोगे कि ये पैदा करने वाला कौन है, कहता है अल्लाह। ये आसमानों का मालिक कौन है, कहता है अल्लाह। ये हम सब के अंदर एक फितरी तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डाल दिया है सारे इंसानों के अंदर, चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। आप जब किसी गैर मुस्लिम से को बोलो ये मारता कौन है, कहता है ऊपर वाला, वो कहता है अल्लाह ने मारा, क्योंकि ये फितरी तौहीद हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको पैदा करने से पहले ही डाल दी है। लेकिन मसला आता है उसके बाद इबादत के अंदर सारे लोग शिर्क करते हैं। इबादत के अंदर रब मानने में शिर्क नहीं है, शिर्क है इबादत के अंदर। तो मैं कह रहा था हलाल भी वाजिया है और हराम भी वाजिया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरख्त के करीब नहीं जाना था, यह भी हराम है, अगर गए तो हराम का इर्तिकाब किया। दूसरा था शैतान को सजदा करने का हुक्म था, अगर इसने इनकार किया यह भी हराम था। उस पर मैं जरा बाद में आता हूं, लेकिन कहना यह चाहता हूं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा किया जाने वाला हराम क्या है? वो शिर्क है। वो हो गया अल्लाह के अलावा किसी और चीज की इबादत करना, नजर न्याज करना, दुआ करना अल्लाह के अलावा, ये शिर्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही खुतबा फरमा रहे हैं, जुमा का दिन है, एक आदमी दूर वादी से आया, दूर उसके घर में खेती होती थी। आप लोग हमारे बुजुर्ग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि जो आजकल का माशरा है, मुमकिन है इनको इन चीजों की कदर ना हो। एक आदमी दूर रहता है मदीना की दूर बस्ती में, उसको घर में फैमिली है, उसके घर में बच्चे हैं, उसके घर में औरतें हैं, लेकिन ये जो साल भर खाना खिलाता है अपने बच्चों को, वो अपनी खेती करता था, वहां खेत में वो खजूर उगाता था। आप लोगों को अंदाजा होगा उन लोगों को जो आज से पहले 10 साल खेती पर ही जिनका गुजारा होता था, जो सिर्फ मक्की के अलावा कोई और सहारा नहीं था। ऐसे हालात में जब कहत सारी हो जाए तो क्या करता है इंसान? ये आदमी मदीना के दूर गांव में बहुत पैनिक हो गया, अब मैं क्या करूं, इस साल तो फसल ही नहीं उगेगी, तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। ये मदीना के दूर गांव से दौड़ता हुआ आया, जुमा का दिन था, खुतबा चल रहा है, ऐसे ही सहाबा की जमात बैठी हुई है, ये दौड़ता हुआ आया, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मंजर रहा होगा? ये इंसान परेशानी की हालत में था, इसको खौफ था, इस साल तो मुझे राशन ही नहीं निकलेगी, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा।
कितना दर्द लेके आया होगा, आपको अंदाजा है इस चीज का। जिसको इसी पे डिपेंड है, आया दौड़ता हुआ खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता किससे सवाल कर रहा है? कायनात का सबसे बड़ा इंसान, सबसे अजीम शान इंसान, मखलूक के अंदर अगर अल्लाह के बाद कोई अजमत वाला है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस इंसान से मुखातिब है। और पता कहां है? मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ रखे हुए है मोहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अल्लाह से दुआ करो। किसको कहता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। ऐसी शख्सियत अगर सामने हो, ये कहने वाले को जरा बराबर भी पता था ये मोहम्मद कुछ नहीं कर सकता। कहा अपने अल्लाह से दुआ मांगो। किससे दुआ मांगो? अपने अल्लाह से। ये नहीं कि मोहम्मद बारिश बरसा दे। अरे तुम पीरों के पास जाते हो शिफा हासिल करने के लिए, अरे तुम रिज़्क मांगते हो उनसे जिनकी औकात कुछ भी नहीं है। ये सहाबी तुम्हें दर्ज देकर गया है, लोगों तौहीद सिखा कर गया है कि ये मोहम्मद बारिश नहीं बरसा सकता। औरत एक आई, मिर्गी की पेशेंट है, मिर्गी आ रही है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से दुआ मांग कि मुझे शिफा मिल जाए। अरे ये रसूल भी शिफा नहीं दे सकता, तुम उन लोगों से शिफा मांगते हो जिनकी कुछ औकात ही नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक दोनों आसमान की तरफ उठाते हैं। इस खुतबे के दौरान ही ये सहाबा की मजलिस गवाह है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अगिस्ना, ये नहीं कहता है कि ये बारिश बरस जा, अल्लाह से दुआ करता है ए इलाहुल आलमीन बारिश बरसा दे। तारीख गवाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ अभी ऊपर ही थे। रावी बयान करता है कि अबर आलूद का टुकड़ा आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जुमा की नमाज कंप्लीट नहीं की थी, बारिश नाजिल हो गई। ये मोहम्मद बारिश नहीं बरसा सकता, ये कुछ नहीं कर सकता। लोगों, जात सिर्फ एक है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, जो नफा की भी मालिक है, नुकसान की भी मालिक है। और ये दर्ज दिया सहाबा ने आप लोगों को। बारिश शुरू हो गई, बारिश नाजिल हो गई, कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये अपने घर चला गया, गांव में चला गया, बहुत खुशी खुशी झूम उठा होगा। अब तो इस साल फसल निकलेगी, हम तो अपने घर वालों को खाना खिलाएंगे। कहते आज जुमा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है। अगला जुमा आ गया, आज जुमा को भी बारिश हो रही है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसको फिर ख्याल आया, इस दूर गांव वाले इस देहाती सहाबी को दौड़ता हुआ आया। उस वक्त भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमा का खुतबा इसे ही फरमा रहे हैं। खड़ा हो गया मजलिस में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से बता कि बारिश को रोक दे, क्योंकि अब तो बारिश हद से ज्यादा आ गई, तूफान आ रहा है, मकान बह रहे हैं। आज भी भूला नहीं, नहीं तो कह सकता था कायनात का इतना बड़ा अजमत वाला पैगंबर ये बारिश नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। कहा अपने रब से दुआ करो कि बारिश रुक जाए। इस आसमान ने देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पे अपने हाथों को उठाते हैं, हाथ उठाते ही बारिश रुक जाती है। अल्लाह रोकने वाला है। लोगों, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वलियों और दूसरे लोगों की तो बात ही नहीं है, उनकी तो औकात ही नहीं है। ये कायनात का अजमत वाला पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहना मैं ये चाहता हूं, लोगों हलाल भी वाजिया है, हराम भी वाजिया है, लेकिन फिर भी हराम करते हो। ये अगर किसी को पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और जरा बराबर भी नफा और नुकसान का मालिक है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक मजा आया और बहुत ही खूबसूरत सी हदीस सुन के जाइए। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। इन लोगों ने कैसा समझा था मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कैसे मानते थे। ये दो लोगों का वाकया है, हजरत मुगीस और हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। अगर नहीं सुना होगा तो खोल के ले बुखारी शरीफ खोल के देख लीजिएगा। ये दोनों गुलाम होते हैं, ये दोनों गुलाम होते हैं। इस्लाम का कानून है, अगर एक गुलाम है और दूसरा आजाद है, अगर ये पहले निकाह में थे, अगर एक आजाद हो गया अब उसको इख्तियार है, चाहे वो अपने निकाह को बरकरार रखे या तोड़ दे। ये इस्लामी कानून है, याद रखेगा। ये हजरत मुगीस भी और हजरत बरीरा भी, ये दोनों गुलाम थे। 2-4 साल 5 साल बाद होता यह है बरीरा आजाद हो जाती है। बरीरा आजाद होने के बाद ये चले आती है अपने घर, लेकिन अब बरीरा के पास इख्तियार था। इख्तियार यह था चाहे वो अपने निकाह को बरकरार रखे, चाहे वो अपने निकाह को तोड़ दे, क्योंकि एक गुलाम और एक आजाद का निकाह इख्तियारी होता है, चाहे रखे या तोड़ दे। इसको पहले से ही हजरत मुगीस पसंद ही नहीं थे, इसकी शादी पसंद की नहीं हुई थी। ये उठती है, जो ही ये आजाद हुई तो इसने बोला मेरा निकाह आज के बाद मुगीस के साथ नहीं है। मुगीस को पता ही नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुगीस के दिल में बरीरा की मोहब्बत भर के रखी थी। ये 2-3 साल के बाद आजाद होता है। जो ही इसको पता चला कि बरीरा ने तो निकाह ही तोड़ दिया है, ये सहाबी रसूल पागल हो जाता है। पागल लफ्ज पागल में इस्तेमाल कर रहा हूं, गौर करिएगा। ये गलियों में घूमता है, ये बरीरा के लिए शेर अशार पड़ता है, बरीरा के लिए ये सारे मतलब मदीना की गलियों में फिरता है। ऐ बरीरा, ऐ बरीरा, मेरे साथ निकाह में रहो। वो कहती नहीं नहीं, मुझे आप पसंद ही नहीं हो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। ये फिरता है, घूमता है, लोगों से मिलता है, मशवरे लेता है, लोगों मुझे कोई रास्ता बताओ। बरीरा ने मुझे ठुकरा दिया है। मौजू पता क्या है? अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन। लोगों, हलाल भी वाजिया है और हराम भी वाजिया है। ये अल्लाह ने किया, वजाहत बयान कर दी। और मोहम्मद रसूलुल्लाह यहां पर सहाबा आपको दर्श देके जा रहे हैं। आखिर एक बंदा, एक इंसान मिलता है इस मुगीस को। मुगीस को कहते हैं, मुगीस तुझे हुआ क्या? कहता है मैं बरीरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। बुखारी शरीफ के अल्फाज है। कहता है मैं बरीरा के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकता हूं, मैं गलियों में भटक रहा हूं। कहा मेरा मशवरा सुनोगे? कहा बताइए। कहा जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के ये इमाम, अजमत वाले ये रसूल, ये इंसान दौड़ता हुआ ये मुगीस जाता है, या रसूलुल्लाह मुझे एक परेशानी ने पकड़ा है, मेरा मसला हल कीजिए। कहते हाँ मसला क्या है? कहा बरीरा मेरी निकाह में थी, लेकिन उसने निकाह तोड़ दिया है, मैं बरीरा से दोबारा निकाह करना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कोई बात नहीं है, जरा बरीरा को बुलाया जाए। ये किसी बादशाह की कहानी नहीं लोगों। बरीरा को बुलाया जाता है, बरीरा खिदमत में आई। कहते हैं एक बरीरा, ए बरीरा, आपको पता है कहने वाला कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। बरीरा को पता है रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहने वाला कौन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कुछ चीजें इख्तियार में दी है, और उनका इख्तियार इतना मजबूत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें इंटरफियर नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के फितरत के मुताबिक कुछ चीजें उसको इख्तियार में दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया
फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा। इस्लाम ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कि आपको फलानी खातून के साथ ही निकाह करना है, नहीं, जो तुम्हें पसंद आए उसके साथ कर सकते हो। ये इख्तियार दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को। इस बरीरा को बुलाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ए बरीरा, मैं क्यों नहीं तू मुगेश के साथ दोबारा निकाह कर ले? कौन कह रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन इस बरीरा को पता है कि मेरे निकाह के मामले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कोई इख्तियार नहीं है। ये बरीरा जवाब देती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अल्लाह का हुक्म है या आपका मशवरा है? लोगों जरा गौर से सुनो, जरा गौर करो इन बातों पे। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बरीरा कहती है क्या ये अल्लाह का हुक्म है या आपका मशवरा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं बरीरा, ये मेरा मशवरा है, अल्लाह का हुक्म नहीं है। क्योंकि अल्लाह के हुक्म में, अल्लाह के इख्तियार में बरीरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इख्तियार नहीं है। कहा ये तेरी मर्जी है लेकिन मशवरा मेरा है। जवाब क्या होना चाहिए? ये सुहाबियात रसूल जो खवातीन भी थी, कितनी ये हसास थी। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब बरीरा को तेरा मशवरा कबूल नहीं है। ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये अल्लाह का हुक्म और मोहम्मद का हुक्म है तब मैं मान लूंगी, अगर तेरा मशवरा है तो तब ये मशवरा मुझे कबूल नहीं है। अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन। लोगों, हलाल भी वाजिया है और हराम भी वाजिया है। हलाल और हराम वाजिया होने के बावजूद भी अगर एक इंसान हराम में पड़ता है, दूसरा हलाल को छोड़कर, इसका अजाब इसीलिए है। मैं कह रहा था आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ दरख्त के करीब नहीं जाना है, शैतान को हुक्म हुआ सजदा करना है, दोनों ने इनकार किया। जरा मुझे आप एक बात आज बताएंगे, शराब पीना एक बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन शराब के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया शराब मत पियो, ये हुक्म है। शराब मत पियो, चोरी मत करो, बदकारी मत करो। ये आगे तीन में तीन ही फिलहाल बताऊंगा। यह है न करना। ये न करने वाला हुक्म पता किसको मिला था? ये तीन चीजें नहीं करनी है, लेकिन यहां से है नमाज पढ़नी है, नमाज का हुक्म है। शराब है नहीं करना है, लेकिन नमाज है करना है, हुक्म दोनों है, अहकामात दोनों है, दोनों की बजावरी जरूरी है। लेकिन एक इंसान है, अगर उसको इख्तियार दिया जाए आपको या तो ये वाला ऑप्शन है या तो ये वाला ऑप्शन है, न करना है, शैतान को बोला सजदा करो, न किया, बड़ा मुजरिम ठहरा। आदम को बोला दरख्त के करीब मत जाओ, लेकिन वो चला गया। ये जब इंसान इस वाक़े की तरफ गौर करता है, शराब पीने वाला नमाज न पढ़ने वाले से कम मुजरिम है। जो न करने का हुक्म है, अगर शैतान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बोला नमाज पढ़ो, उसने नहीं पढ़ी, वो बड़ा मुजरिम ठहरा। आदम को बोला शराब मत पियो, लेकिन उसने पी, मिसाल एक बता रहा हूं, तो वो उससे कम मुजरिम है। तो कहने का मुद्दा और मकसद यहां पर यह है, चाहे किसी चीज से रोका गया है, चाहे किसी चीज को करने का हुक्म दिया गया है, ये दोनों हकामात है। ये भी हलाल वो हराम वाज़े है, यहां पर हलाल वाज़े है। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, लेकिन हराम के लिए एक एक्स्ट्रा चीज बताई गई है। मिसाल के तौर पर मैं बुराइयों में से एक चीज या दो चीजों के बारे में अभी बयान करने की कोशिश करूंगा।
हराम, मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम रखी है, हराम की तरफ जाने वाले जितने असबाब हैं, जितने रास्ते हैं, वो रास्ते भी हराम है। जो हराम तक ले जाते हैं वो तमाम रास्ते भी हराम है, और वो रास्ते इख्तियार करना गुनाह है। जैसे कि एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब के बारे में, शराब के बारे में आदमी एक पीता है लेकिन इसके गुनहगार 10 होते हैं। हदीस में वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कितने गुनहगार हो गए इसमें? 10 लोग। क्यों? क्योंकि हराम तक पहुंचने के लिए जो भी जराए, जो भी असबाब, जो भी रास्ते इख्तियार किए गए, वो तमाम के तमाम जो है हराम है। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिक्र किया शारिबुल खम्र, शराब पीने वाला, ये तो था ही शराब। फिर फरमाया अल खम्र, शराब भी हराम, उसके बाद शराब पीने वाला भी हराम का मुलविस। फिर फरमाया साकीहा, एक तो पीने वाला, एक तो शराब बजाते खुद, दूसरा वो भी उतना ही गुनहगार, दूसरा है जो पी रहा है वो भी गुनहगार, तीसरा जो है जो पिला रहा है, जो गिलास में डाल रहा है, जो बैठने के लिए जगह दे रहा है, वो भी उतना ही गुनहगार। आसिरुहा, जिसने फैक्ट्री में बनाई है, वो भी गुनहगार। और एक तो मजे की और बात फरमाया वो मुअतसिरुहा, और जिसने उस शराब के लिए अंगूर बेची अपने हलाल घर से, हलाल चीज, मिसाल के तौर पर अंगूर की खेती करना, उसको बेचना हलाल है, अच्छा काम है। लेकिन जिस शख्स ने शराब, ये अंगूर जो है शराब की फैक्ट्री को बेचा, वो भी उसी तरह है जैसी शराब पी उसने। समझ आ रहा है कुछ? और उसके अलावा शराब की फैक्ट्री से जिस गाड़ी में लोड हुई हामिल हुआ, वो भी उतना ही मुलविस, चाहे वो हाजी ही क्यों न हो, चाहे वो नमाजी ही क्यों न हो, चाहे वो मोमिन ही क्यों न हो। हराम की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे रास्ते भी हराम है। इतना ही नहीं बल्कि जो वो महमूल हो, और जिस शख्स ने किराए के लिए गाड़ी के ऊपर डाला, वो गाड़ी वाला भी उसमें मुलविस। फिर फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बाईहा, और वो आदमी भी जिसने दुकान पे रखी अब बेच रहा है। सिर्फ बाई ही आई नहीं, फरमाया वो मुश्तरीहा, खरीदने वाला भी। कितने लोग आ गए यहां तक? 9 लोग आ गए। शराब से लेके यहां दुकानदार तक पहुंचाने वाले तमाम के तमाम लोग जो है, जो एक पी रहा है, जो इन सबों को मालूम नहीं है, इनमें से किसी को भी मालूम नहीं है। इसीलिए लोगों, इसी हदीस में फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुशब्बिहात। हलाल भी तो वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, लेकिन इसके दरमियान कोई चीजें मुश्तबिह चीजें हैं, मशकूक चीजें हैं। इन मुश्तबिह चीजों से भी बचना है। आप मुझे बोलो, उस अंगूर की खेती करने वाले को उसका क्या गुनाह था? उसको भी वही अजाब जो एक शराब पीने वाले को अजाब। इसीलिए मुश्तबिह चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए एमवाई बिजनेस हो या इस किस्म के जितने भी सट्टा बाजारी हो या दूसरे ऐसे बिजनेस, इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, फरमाया लोगों, आप लोगों पर हराम है कि आप किसी के घर में कोई फल खरीदो जब तक वो पूरे का पूरा न पक गया हो।
मार्च में खरीदते हो, अखरोट नवंबर में उतारते हो। इस्लाम ने हराम करार दिया, इस्लाम ने इस बिजनेस को जायज नहीं करार दिया। और अपनी उन चीजों को वहां से, मिसाल के तौर पर शेयर मार्केटिंग है, दूसरी चीजें हैं जिसमें हमारे नौजवान हर दिन इस दलदल में फंसता ही जा रहा है। ऑनलाइन बिजनेस है, कोई ऐसी कंपनी से आप रिलेट हो रहे हो जो आपको तो चावल दे रहा है, लेकिन आपके मुनाफे से वो वहां से ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है जो इस्लाम में हराम है। इसीलिए ऐसी मुश्तबिह चीजों में, जो मशकूक चीजें हैं, जो वाज़ेह चीजें नहीं है, उनमें नहीं पड़ना होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुश्तरी है, इस शराब को खरीदने वाला भी। इसलिए इस्लाम ने इतना वाज़ेह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, तरक्तुकुम अलल बैज़ा, मैंने तुम्हें रोशन शहरा पे छोड़ा है। लैलुहा कन्हारिहा, इसकी रातें भी इसके दिन की तरह रोशन है। हलाल देखोगे लिस्ट बनी है, हराम की भी लिस्ट बनी है। लोगों, बचना तो मुझे और आपको है। मुश्तरी है, इसको खरीदने वाला भी ऐसा ही है जैसे उसने शराब पी है। और लास्ट पर फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वकीमतुहा, एंड जो कंक्लूड होता है, जब एक प्रोडक्ट बिक जाता है, उससे पहले जो उससे हासिल होता है वो उसकी कीमत होती है। अब इसकी कीमत भी हराम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपको पता है कि शराब हराम है, लेकिन ये पता नहीं है आपको इसकी तरफ जाने वाले सारे रास्ते भी हराम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर उसकी तरफ जाने वाले रास्ते हलाल भी हो, उनको भी छोड़ देना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुहाबी आया, बीच में शायद ऊपर वाली मंजिल खुली है, हाँ, ऊपर वाली मंजिल में भी जा सकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुहाबी आया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नजर मानी है कि मैं फलानी जगह ऊंट को कुर्बान करूंगा। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता जवाबन क्या फरमाया? कहा, ए शख्स, क्या जमाना जाहिलियत में कोई इंसान वहां पर नजर न्याज करते थे? क्या वहां पर मत कभी बुतों के लिए ज़बह किया जाता था? इस शख्स ने कहा, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जमाने जाहिलियत में कभी शिरक होता था, आज नहीं हो रहा है, आज वो कुर्बानी अल्लाह के लिए करना चाहता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हलाल काम की भी इजाजत नहीं दी जिसमें कभी जिंदगी में शिर्क की आलाइश रही हो, हराम काम की आलाइश रही हो। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल भी वाजिया है और हराम भी वाजिया है, वह बैनहुमा मुश्तबिहात, और इस हलाल और हराम के दरमियान कुछ चीजें ऐसे हैं जो मुश्तबे हैं। ला यालमुहा कसीरुम मिनन नास, लोगों को इसका इल्म नहीं है, आम लोगों को इस मुश्तबह चीजों के बारे में इल्म नहीं है। उसकी मिसाल मैं ऐसे देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर मुश्तबह चीज हो गई सिगरेट पीना, मुश्तबह चीज हो गया तंबाकू का इस्तेमाल करना। अगर किसी इंसान को कहोगे हलाल है कि हराम है, आम लोगों को, अब अक्सरियत उन लोगों की है जो करते हैं, कहते हैं ये तो हराम है। फिर करता क्यों है? देखो, शराब भी हराम है, अगर ये सिगरेट और ये बाकी चीजें भी हराम है, फिर ये क्लासिफिकेशन क्यों हो रही है? हराम है तो छोड़ देना है। अगर आपको नहीं पता है किसी चीज के बारे में हलाल है या हराम है, तो इस्लाम ने उसकी गाइडेंस बताई। बैनहुमा मुश्तबिहात, इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं जो मशकूक है, जो मुश्तबे है। ला यालमुहु कसीरुम मिनन नास, जो आम लोगों को पता नहीं होता है।
उनके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमनित्तका, जो शख्स बच गया इन मुश्तबिह चीजों से, इस्तबरा लिदीनिही व इर्जिही, समझ लो कि उसने अपने इस्लाम को, अपने दीन को और अपनी इज्जत को महफूज कर दिया। जो शख्स इन मुश्तबिह चीजों में गिर गया, फकअन्नमा वका फिल हराम, वो तो ऐसे ही है जैसे उसने हराम काम कर दिया है। गुनाह में दोनों। अगर आपको किसी चीज का इल्म नहीं है, उसको मत करो कि ये हलाल है कि हराम है, उससे रुकना है। इस्लाम ने गाइडेंस की। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल दी, उस शख्स की मिसाल दी। क्या फरमाया? कराइन, जो मुश्तबिह चीजों में पड़ा, उसकी मिसाल ऐसे है, उस चरवाहे की मिसाल है। मिसाल के तौर पर, यरा हौलल हिमा, जो अपनी भेड़ों को, जो अपनी बकरियों को चराता है, ऐसी जमीन के पास, मिसाल यहां जमीन का एक टुकड़ा है, इसमें खेती लगी है, इस खेती के चारों तरफ बाड़बंदी नहीं है, कोई बाड़ नहीं है, लेकिन ये चरवाहा इतना कॉन्फिडेंट है, बोलता है मेरे पास 100 बकरियां हैं, इसके आसपास, ऐसी बाउंड्री के आसपास घूमता है, इस बाउंड्री के आसपास। हराम के नजदीक नहीं जाना है लोगों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, ला तक़रबुज़्ज़िना, लोगों बदकारी के करीब भी मत जाओ। ये नहीं फरमाया कि बदकारी मत करो, बदकारी के करीब भी नहीं जाना है। कोई कहेगा मैं तो बड़ा मोमिन हूं, मैं तो औरतों में रहकर भी मोमिन रह सकता हूं, झूठ बोलता है, वो कुरान के कानून के मुखालिफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया। देखो गाना सुनना क्यों हराम है? आपको पता क्यों हराम है? क्योंकि ये बदकारी की दावत देता है। इख्तिलात इस्लाम ने क्यों हराम करार दिया? कहते हमें तो कुछ नहीं होता, हमने तो 15 कॉलेज में को एजुकेशन को आम किया। नहीं, इसमें अगर 99% लोग भी बच सकते हो, लेकिन एक का इस काम में मुलविस हो जाना सारों को गुनहगार होने का सबब बनाता है। ला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी नहीं जाना है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे को बोला, जो बहुत कॉन्फिडेंस है, बोलता है मेरी 100 बकरियां जो है बाढ़ नहीं लगी है, वो ऐसी जगह घास खिला रहा है जहां घास ही नहीं है, सामने एक घास का खेत है जिसको कोई बाढ़ नहीं है। मुझे बोलो ये चरवाहा कितनी दिन तक इन बकरियों को रोक सकता है? वो नहीं रोक सकता। एक दिन, एक रात, ये बकरियां जब भूख के हो जाएंगी, ये रात को अपनी बाउंड्री को फलांग के उसमें पड़ जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुश्तबिहात के करीब मत जाना। आज बोलोगे सिगरेट चलेगी, कल बोलेंगे फिर और भी कुछ चलेगा, परसों बोलेंगे कुछ और भी चलेगा। बोले सिगरेट भी हराम है, शराब भी हराम है, क्यों ना शराबी पी लेता हूं। ये रास्ता खोलता है लोगों, मुश्तबिह चीजों में पढ़ना ये बड़े हराम का रास्ता खोलता है। इसलिए मुश्तबिह चीजों से भी मत जाओ, जिनका इल्म नहीं है उनके नजदीक मत जाओ। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चरवाहे की, टाइम हो गया, इस चरवाहे की मिसाल दी, तो इसकी वजाहत तलब हदीस है। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह कभी आइंदा मौका मिले तो जरूर वजाहत करेंगे, लेकिन कंक्लूजन ये रहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस चरवाहे को, इस जो खेत नजदीक है, ये कॉन्फिडेंस नहीं रखना कि ये नहीं जाएंगे, बल्कि पहले ही दूरी बना के रखेगा, पहले ही बोलेगा कि मैं 1 मील इस जमीन से दूर रहूंगा, कहीं इस जमींदार का ये नुकसान ना कर दे। फिर फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला ए लोगों खबरदार हो जाओ, ये जमीन जो है ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन है। आप मत सोचना इस जमीन में हम हुदूद को फलांग करेंगे, इसके हदों को तोड़ेंगे और फिर बच जाओगे, कभी नहीं बच सकते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो
حلال اور حرام کے درمیان جو ہے حد بندی کی ہے، دیوار رکھی ہے، اس کو پھلانگنے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔